Namaste. Press media is the real strength. Whenever we wanted to have any kind of event, we welcome them, and they have good ideas, different ideas to publicize whatever they happening. So welcome you all. I am Manoj Arsa. Along with me, I am the president of ICMA. Along with me, Arvind Bhai Mehta, who is the Governor Council Chairman of ICMA. We are at head office at Bombay. My right, Mr. Bipin Bhai Desai is the VP West of ICMA, and my left side, the main Tijori Pakadne Wala, VP Finance is there of ICMA. Along with us, our staffs are there, all these, those who have come from ICMA head office, Mumbai Andheri. So ICMA, you know, it is about 22,000 members are there, direct and indirect, related to plastic industries mainly, and allied products are there. So here about 3 to 4 main activities I will describe, because due to paucity of time. Mainly the advocacy with the government, any kind of ease of doing business or whatever it is there, we represent to the state government as well as the Maharashtra government and central government, and they cooperate whatever the policies are there and what we require for ease of doing business. And thereafter the upskill development courses are there. Mr. Arvind Bhai Mehta will brief about that, and job fair, and there are exhibitions which are going to come. That is for Plastic World. One is there for GCPRS. Thereafter Plast Vision 2027. So that is all on website www.icma.net. You can get all the details. So not taking more time, we'll focus on the subject for what we have gathered today. So I will request Sri Arvind Bhai Mehta, who is the Bhisma Pitama of our industries, dedicated since decades and decades and decades. So he will brief you about the today's main subject, that is export finished product, make in India for rest of the world. So I will hand it over to Sri Arvind Bhai. Thank you very much. Thank you, Manoj Bhai. And little addition of the ICMA, I would supplement his point. We are 80 years old association. We have offices across the country, zone-wise, north, east, south, west. And we have 3 houses, head office is Mumbai, and we have 3 houses in MIDC Marol, that is number 1, and 1 in Gurgaon. So we are backed by 41 managing committee members who are all honorary, contributing to the growth. This is point. We are basically, our membership is MSME. So they have the time to devote to the job and like that. And it is driven on the growth path. The plastic industry, everywhere is growth driven by MSME. Growth of plastic industry is converting industry, I would call it, is 15% per annum. That means जो हम लोग बोलते हैं भाई प्लास्टिक खराब है, ये है, वो कुछ नहीं है, ग्रोथ है उसमें, बहुत है ग्रोथ. और जो पॉलीमर का जो ग्रोथ है, that is around say 8, 9, 10%, something on that line. This small scale, this is a MSME, converting industry is into the small scale MSME. That is the point. तो जो भी है, एक मशीन आएगा तो 10 आदमी को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं. तो हमारी ताकत ऐसी है कि हमारे MSME जो है 50,000 होल ओवर कंट्री में है, जो अपने यूनिट, और करीबन 4.6 मिलियन लोगों को जॉब देता है. सो वी आर जॉब क्रिएटर्स, वी आर जॉब गिवर रादर ऑन दैट साइड. सो ये जो हम लोग करते हैं, अभी ग्रोथ के लिए क्या करने का, वो हम लोगों ने स्टडी काफ़ी हम लोगों ने किया. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों ने देखा कि भाई हमारा जो है ग्रोथ, वो कैसे, कहाँ अटकता है और क्या है. तो एक हम लोग आए, टेक्नोलॉजी गैप है ऐसा करके हमारी कमेटी ने निर्णय लिया 5, 6, 7 साल पहले. 7 साल पहले क्या था, हम लोग जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट देखते थे मार्केट में या आउटसाइड, तो मेड इन XYZ कंट्री का आता था, जो अपने को मालूम है, समझो चाइना, वियतनाम या ऐसे वहाँ से.
तो वो हम लोग को दुख लगता था कि भाई इधर उसका क्या काम है, भाई हम लोग जब भी बनाने वाले हैं तो क्यों आएगा। तो हमारी कमेटी ने सोचा है गलत है, वी हैव टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने सीधा एक टेक्नोलॉजी सेंटर चालू किया, जो आपको बताएंगे बाद में। तो उधर हम लोग को टू ब्रिजिंग द गैप, तो एक चीज़ को हम लोग को ये समझो बनाने में 6 महीना लगता था या 3 महीने मोल्ड मेकिंग या जो था। तो अभी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से जो है वो 3D USA के साथ टाइप किया, उसका जो मशीन लाए हैं, सीमेंस के साथ जर्मनी के साथ टाइप किया, रिवर्स इंजीनियरिंग जेस के साथ टाइप किया, और डिज़ाइन इंजीनियरिंग का हम लोगों ने चालू किया। तो ये जो चीज़ है हम लोगों ने समझो कोर्स भी चालू किए, और डिज़ाइन में ऐसा है कि आपको ये बनाने का है तो 3 दिन में उसका प्रोटोटाइप बन जाता है, देन यू कैन गो टू द मार्केट। सो 3D प्रिंटर, हाँ 3D वो कहने का जो पॉइंट है, तो यू कैन गो टू द मार्केट। ये एक बात हुआ, तो हम लोग का एक प्लस पॉइंट हो गया। अभी दूसरा, हम लोग अभी बच्चे लोग को भी ट्रेन करते हैं, मीन्स अपस्किलिंग भी करते हैं। तो करीबन अभी तक हमारा 1100 बच्चों को हम लोगों ने अपस्किल कर दिया, और हम लोग जॉब की गारंटी देते हैं कि भाई आप इसमें से पास हो जाओ, आपको जॉब चाहिए तो हमारी इंडस्ट्री में मिलेगा। दिस इज स्टोरी। एंड जो बच्चा बराबर रहेगा तो उनको हम लोग जॉब भी दिलवा देते हैं, हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर इनसाइड है और देते हैं। तो जो अभी हम लोग को 300 लोगों को हमने जॉब दिया है, जिस बच्चे लोग को, एंड फ्रॉम द सैलरी ऑफ 3-4-5 लाख रुपीज़ पर एनम ऐसे करके। और हम लोग को जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट वगैरह नहीं ढूंढते हैं, हमारा जो क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल है, जो बोलते हैं हम लोग कच्चा माल, तो दैट इज़ ऑल द क्या बोलते हैं 11th to 14th या जैसे जो है कोई फेल हो गया, ये हो गया, ऐसा जो लेफ्ट आउट जो है बच्चे लोग, वो हमारे स्टूडेंट हैं, एंड दे आर सक्सेसफुली डन। हम लोगों ने बेसिकली ऐसा इसमें सोचा कि भाई कंप्यूटर सबको आता है, अभी पहले जैसा नहीं है कि कंप्यूटर किसी को नहीं, जो टॉप पास हुआ उसको भी आता है, नीचे जो नहीं पास हुआ उसको भी आता है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। और जिसका मैथ्स और साइंस अच्छा है तो उनको हम लोग को ट्रेन करते हैं। हमारे पास 15 कोर्सेज है और उसमें होता है। तो दैट इज़ इन MIDC अंधेरी। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू विजिट द टेक्नोलॉजी सेंटर। ये एक हमारा गैप ख़त्म हुआ। दूसरा हमारा ऐसा था कि जो इंपोर्ट माल आ रहा है उनका स्टडी करने का, वो भी हमने किया। तो आज भी इम्पोर्टेड मटेरियल जो बाहर से आता है वो करीबन 1 लाख करोड़ का है, वो भी हमारी मार्केट है, दैट वी आर मिसिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट। फिर हमने स्टडी किया कि भाई एक्सपोर्ट का क्या है, भाई व्हाट इज़ व्हाट। तो एक्सपोर्ट के लिए भी हमने किया। इन बिटवीन हमारा जो क्या बदनामी हो रही है रिसाइकलिंग, अरे प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट, तो हम लोग को हमेशा रोज ऐसे गलत बॉक्स में डालते हैं, भाई प्लास्टिक बराबर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब करके हम नहीं मानते हैं उनको। इट इज़ बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट इशू एंड लिटरिंग इशू, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो उसमें नहीं है, बट आई डोंट टू गो इन टू डिटेल। हमको तो हमारा ग्रोथ चाहिए, हमारी इंडस्ट्री का बड़ा करने का। तो ये इसके लिए भी हम लोगों ने एक एग्जीबिशन खास करके बनाया, दैट इज़ ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑफ रिसाइकलिंग। वो हम लोग एवरी ईयर करते हैं और दिल्ली में करते हैं। तो टू कनेक्ट विद द गवर्नमेंट, वी आर 100% बिलीवर ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, जो भी है सर्कुलर होना चाहिए, एंड दैट इज़ वी आर सपोर्टिंग विद द गवर्नमेंट। दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3, हम लोगों ने सोचा भाई हमारा ग्रोथ का एरिया और कौन सा है। तो ये जो हम लोगों ने 15 महीने पहले एक स्टडी चालू किया कि लेट अस स्टडी कि बाहर के लोग क्या करते हैं। तो जो है अमेरिका क्या करता है, जर्मनी क्या करता है, जो ऐसे करके। तो हमने 21 कंट्रीज़ का स्टडी किया। तो आप नहीं मानेंगे कि भाई 21 कंट्रीज़ में प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वो बहुत है। मैं सभी अपना अमेरिका में 12.5% ऑफ द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदता है, और इंडिया का शेयर कितना है, 1.2%। तो ये जो चीज़ है वो हम लोगों ने ये बुक के द्वारा हाईलाइट किया। इनकी सॉफ्ट कॉपी भी आ जाएगी, हम लोग आपको दे सकेंगे, नो इश्यू। तो ये जो बुक है वो हमारी भगवत गीता हो गई कि भाई इसमें 21 कंट्री का HSN कोड हमारा जो है 39 चैप्टर का, और 9 HSN कोड है उसका सबका है। तो मैं आपको खाली एक हाईलाइट ऐसे करके देता हूँ कि भाई इसे जो है पीयूष गोयल जी का इसमें वो राइटअप है। ये सब कंट्री है हमारी जो स्टडी कंट्री है, आपको खाली बताता हूँ। ये जो सब फ्लैग वाली कंट्री है, तो उसमें ये जो है इसमें USA, चाइना, जर्मनी, मेक्सिको, ऐसे करके नाइजीरिया, केन्या तक 21 कंट्रीज़ का हमने स्टडी किया है। नाउ अभी जो है मैंने थोड़ा एक समअप किया है
कि जो हमारी जो कंट्री में प्लास्टिक प्रोडक्ट का खाली आपको बताऊं सर कि हमारी जो 39 चैप्टर बोलते हैं जिसमें हम लोग फॉल इन होते हैं हमारे प्रोडक्ट प्लास्टिक के प्रोडक्ट, दूसरे में भी 8 में है, मतलब वो अभी बोलता नहीं हूँ, है स्टडीड है। तो यूएसए में हम लोग सर इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट है 1.68%, वो लोग जो करते हैं उसका। चाइना का एक्सपोर्ट है 35.57%, 36% ऐसा बोल सकते हैं। और वियतनाम जैसा इतना छोटा कंट्री है उसका 5% है। दैट मीन्स इसमें इतना स्कोप है कि बात मत पूछो। मगर अभी ये टैरिफ का लफड़े से जो भी है वो अलग बात है। बट इवन इफ वी लीव अमेरिका, 20 कंट्रीज़ में भी हम कर सकते हैं, मीन्स वी डोंट हैव एनी दिस वन। तो इसमें चाइना में का भी जो है हम लोगों ने दिया है, फिर ये इसका खास करके, और ये दूसरे फ्रांस का, तो फ्रांस का भी जो है, मेक्सिको का भी है सर। मेक्सिको में हमारा एक्सपोर्ट है 0.66%, और हमारा शेयर उधर जो एक्सपोर्ट है, चाइना का 17% है और वियतनाम का 0.48% है। बट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ चाइना एंड इंडिया कि भाई हम लोग कर सकते हैं, वी हैव द कैपेसिटी, वी आर कैपेबल, वी हैव द मनी, वी हैव द व्हाट यू कॉल, ऑल स्मॉल पीपल आर ग्रोन अप। और अभी सबसे बड़ी अच्छी बात क्या हो गई हमारी इंडस्ट्री में कि जो थर्ड जनरेशन जो आई है ना, दे आर हाईली एजुकेटेड एंड दे नो द जॉब, मीन्स दे आर परफेक्ट। फर्स्ट जनरेशन थी वो उन्होंने चालू किया, सेकंड जनरेशन ने कैरी फॉरवर्ड किया, अभी एजुकेटेड आ गए, सो दे बिलीव इन द वर्क, सो इट इज़ ईजी। फ्रांस का भी हम लोग, हमारा खाली 40.41 है और चाइना का 11% है। फिर यहाँ पे इटली में हमारा 0.78% है और चाइना का 11% है। सी सब सिमिलर सिचुएशन इज़ इन 21 कंट्रीज़। खाली एक जो अफ्रीका में 2 कंट्री है उसमें थोड़ा अपना ज़्यादा है। दैट मीन्स व्हाट सर कि वी हैव द बिग स्कोप टू एक्सपोर्ट द प्लास्टिक प्रोडक्ट। Plastic is what you call everybody's what you call material, common man's material। उनको खाली जो अभी नेगेटिव लिस्ट में जो है वो है, बट इट इज़ नॉट दैट, देर इज़ वहाँ काफ़ी स्कोप है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा भाई इंडस्ट्री को एक ग्रोथ का जगह है, हम बतावे भाई ये आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा है, समझो हम लोग ये करेंगे अभी, तो इसमें फ़ायदा एक तो हमारा ऐसा रहेगा कि भाई अपना फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा ही, दैट इज़ ओके। वी विल हैव द व्हाट यू कॉल 4 टाइम्स करेंगे तो दैट विल बी द व्हाट यू कॉल, देखिए अभी मैं आपको बताऊं, हमारा जो एस्टिमेटेड साइज़ ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया, ऐसे मैं बताता हूँ, मैंने हम लोगों ने निकाला है। तो प्लास्टिक फिनिश गुड्स का जो है, जो टोटल साइज़, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल साइज़ ऑफ द इंडियन प्लास्टिक फिनिश गुड्स, तो वो है 4.44 लाख करोड़। तो दैट मीन्स अराउंड 52.18 बिलियन का हमारा वो मार्केट है, $। बाकी दुनिया में बोलते हैं रिसाइकल का भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो उसका जो मार्केट है, ये तो डोमेस्टिक मार्केट के बोल रहा हूँ, 0.88,000 लाख करोड़, मीन्स 5.32 लाख करोड़ की हमारी टोटल इंडस्ट्री में हमारा है। दिस इज द स्टोरी। नाउ हम लोग का जो एक्सपोर्ट होता है वो खाली 0.75 लाख करोड़ का होता है। दिस इज द स्टोरी। तो दैट मीन्स हम लोग कुछ भी करें तो 13%, 13.5% होता है। इसका जो हमने स्टडी किया है 21 कंट्री का, इजीली 4 टाइम्स हम लोग का हो सकता है, खाली कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अभी एक्सपोर्ट का एमएसएमई को क्या सबसे बड़ी दुख या सुख क्या है कि सब लोग को मार्केट, इंडिया इज़ ए बिग मार्केट, तो यहाँ उसका प्रोडक्ट बेच जाता है, तो कोई वो बाजू बाहर देखता नहीं है ऐसा, उसको तो लगता है हमको तकलीफ है, हमको ये है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट इज़ द मदर ऑफ द व्हाट यू कॉल ऑल प्रोग्रेस। मैं आपको बोलूँ जो भी है, एनीथिंग एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज़ द आंसर टू द एमएसएमईज इश्यूज। तो ये जो है 0.75 का है, तो दिस कैन इजीली गो टू 3 लाख करोड़। जो 0.75 लाख करोड़ का है वो इजीली विदिन 3 years कैन ग्रो, और मार्केट साइज विल बी ऑन दैट लाइन। ओवर एंड अबाव भी हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास 1 लाख करोड़ का अभी भी इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट हो रहा है, वो हमारी मार्केट है, विच वी आर नॉट कंसिडरिंग। ये इसमें नहीं आया, बट वी हैव टू ऐड दैट पॉइंट ऑल्सो।
तो ये हमारी एक गुजारिश है कि भाई हमारी इंडस्ट्री को जागृत करना, या जो भी है भारत सरकार को जागृत करना, हमारी इंडस्ट्री में भी लोग हैं उसको भी जागृत करना। तो 50,000 हमारी MSME है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा सर ऐसा होगा कि आज जो पॉलीमर वाले जो हैं पॉलीमर प्लांट, उनके करीबन 2-3 प्लांट और बढ़ेंगे, दैट कैन कम इन। फिर मशीनरी वाले जो है हमारी प्लास्टिक मशीनरी वाले, तो उनका भी जो है डबल ट्रिपल जो भी है उनके कंसर्न है उनका हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ऐसा है कि MSME को फ़ायदा होगा, जो है बड़े को फ़ायदा नहीं होता है, खाली MSME को ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज दे आर सेल्फ ड्रिवन। तो सर इसको सपोर्ट करना चाहिए। हमने तो सरकार को ऐसा भी बोला है कि भाई PLI स्कीम आप सबको देते हो, हमें समझो PLI स्कीम की जैसा पैसा फंडिंग आप करिए, बट हाउ? हम बोलते हैं भाई एक्सपोर्ट करो, आप एक्सपोर्ट करो और एक्सपोर्ट के साथ पैसा लिंक करो, तो भी खोटा नहीं है। सो दौड़ेंगे, सिर्फ पैसा आएगा तो सब दौड़ते हैं। अभी आपने जो सुना होगा 10 साल पहले, 15 साल पहले, अभी इधर आगे वाड़ा है या अपने जो एरिया से काफ़ी दमन है, सिलवासा है, ये बाजू, तो सब जगह गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया था। तो इंसेंटिव दिया तो सब लोग दौड़े उधर, और उधर काम हो गया। इसमें भी इंसेंटिव देंगे तो काम 100% होएगा, एंड इट विल बी पीनट। आप वो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ उनको दे देते हो बड़े बड़े हाथी को, तो हाथी को दे दो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, मगर इधर तो थोड़ा तो आना चाहिए। तो दैट इज द स्टोरी। सब्सिडी फॉर MSME। हाँ सर, सब्सिडी फॉर सब्सिडी इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्ट मेनली, जो एक्सपोर्ट फोकस, तो ये हमने मांगा है। बाकी हमारी देखिए सर, हमारा प्रोडक्ट इतना साउंड है कि वी आर एवरीवेयर, आपको तो मालूम ही है। अभी कोई हमारे दोस्त अभी परसों गया था तो हॉस्पिटल में कहीं ऑपरेशन था, तो बोलता है अरे यार ही वॉज इन द ऑपरेशन थिएटर, तो बोला मेरा बॉडी में सोया था तो आधा तो ऊपर प्लास्टिक था मेरे पास, वो ब्लड बैग ये वो सब करके। सो इट इज़ एन एसेंशियल आइटम। कोविड में भी जो हुआ उसमें भी फ़ायदा ही हुआ, मीन्स प्लास्टिक इंडस्ट्री हेल्प जो भी है। इश्यू जो है वेस्ट मैनेजमेंट का है और अपना लिटरिंग का, उनका सिस्टम बना दो, वी आर देयर टू सपोर्ट। बाकी इसका कोई ग्रोथ अटकने वाला नहीं है, दिस इज़ द होल पॉइंट, होल स्टोरी। दूसरी जगह यूरोप को ये जो एक अमेरिका छोड़ देंगे ना तो भी 4 गुना हो सकता है। दिस इज़ आवर कन्वेइंग पॉइंट। अमेरिका का आज जो होगा रिजोल्व हो जाएगा, बट इवन इफ नॉट देयर इट इज़ देयर। तो ये सपोर्ट करने जाएँ, और हमारी इंडस्ट्री तैयार है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी है वंस दे फाइंड इट। अभी क्या है कि प्लास्टिक के नाम खराब हो गया है, तो जरा पीपल हैव सम रिजर्वेशन इन द होल चेन, जो नीचे से ऊपर तक उसको तकलीफ है, मगर इट इज़ नॉट एट ऑल बैड, मैनेजमेंट इज़ बैड। वही बोलने का माइक्रो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक जो बोलते हैं, हमने अभी तक ऐसा देखा नहीं है कि किसी के लाइफ डैमेज हुई हो डायरेक्ट आदमी का, कोई घर में अपना रहेगा या बाहर का रहेगा। बट वी डोंट चैलेंज देम, वी डोंट एट ऑल चैलेंज, बट ग्रोथ इज़ देयर, दैट्स ऑल, दैट इज़ आवर रिक्वेस्ट। सो सर हमारा ये आपको गुजारिश है कि काइंडली पब्लिश द पॉइंट on that direction, that we are positive, we are what you call friendly with the society, we are useful to the society, from medical science, agriculture, anywhere we are there, कोई भी प्रोडक्ट है we are there to support। तो अब ये हमारा वो था, तो भी आप बोल सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए। in addition, one point as you told, the incentives what we are demanding, that is related to plastics finished product, those who are exporting and getting growth, in that they can give. So it will be more incentives to buck up the export. For export buck up होएगा, then it will increase our forex reserve. जो अपना मेन कंसर्न रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो फॉरेक्स रिजर्व रहता है भारत सरकार के लिए या कोई भी सरकार के लिए, कोई भी कंट्री, तो दैट कैन बी एनहेंस्ड। And Bharat is a country, whatever everybody, all are very well experienced. आफत होती है उसमें ही अवसर आता है, तकलीफ आती है उसके साथ तक लेके आती है। पूरा मेजॉरिटी गुजरातीज आर देयर, दिस महाराष्ट्रियंस आर देयर, सो वी आर बिलीविंग इन दैट। सो वट एवर करंटली हैपनिंग फॉर दी रेसिप्रोकल ड्यूटी एंड देयर, तो वही टाइम पे तो दूसरा कंट्री का सोच सकते हैं कि चलो करंटली टेम्परली अभी बंद हुआ है कोई एक कंट्री के लिए, तो अदर कंट्रीज आर दे आर बाइंग,
And there are lots of figure will speak. The book will be given, or the later on the pen drive also will be given. But there are lots of scope. Now, how much question. this export industry has got affected because of American tariff, increasing tariff. So America has put the tariff now. So how much this industry is affected? सर अफेक्ट तो हुआ है है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट में जो अफेक्ट हुआ है डेफिनेटली हुआ है, बट दे आर फाइंडिंग द अदर मार्केट और वगैरह ऐसे चल रहा है क्योंकि 50% टैरिफ आ गया है तो 50% इज अनबेरेबल, तो लोग का 25% तक का मन में था कि भाई ठीक है चलेगा करके। कोई एस्टिमेट है कि कितना गया होगा, कितना 100 करोड़ या 50 करोड़ या कितना का हुआ है परसेंटेज? ऐसा कोई हमने एस्टिमेशन निकाला नहीं, बट अमेरिकन मार्केट में से डिसीजन इम्पैक्ट तो हुआ। कोई अंदाजा तो होगा कि जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना स्टैटिस्टिक्स अपना स्टडी किया, जैसे आपने इतने सारे देश को किया, तो इतना ताज़ा निर्णय के बाद अफेक्ट होना वगैरह कोई तो एक स्टैटिस्टिक एस्टिमेट तो अंदाजा लगाया होगा कि नहीं दैट इज व्हाई यू आर डिमांड द इंसेंटिव। आपने कहा कितना भेजते हैं अभी, कितना भेजते थे टैरिफ आने से पहले? इंडिया का जो प्लास्टिक का एक्सपोर्ट था कितना परसेंट था अमेरिका में? this is related to that only. This is not after this. अपना आंसर आपको क्या है ना, हाँ तो एक्सपोर्ट बिफोर अपना टैरिफ, अपना जो बिफोर आफ्टर टैरिफ। Okay. अपनो आज No, after after 3.5 जी सर, वो 3.4 बिलियन था, 3.4 बिलियन था बिलियन और बी B 4 billion. बिलियन मिलियन मिलियन Million. बिलियन 3.4 बिलियन बिलियन भी या बिलियन Yeah, बी yeah. बी बी फॉर बॉम्बे Yeah. या तो इतना था, तो उसमें अभी रिडक्शन आएगा जो दिखेगा वो अभी जो है वो। सेकंड पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि एक तरफ जो है ऑन वन साइड यू आर सेइंग दैट वी मस्ट प्रमोट, द गवर्नमेंट मस्ट गिव इंसेंटिव्स एंड प्रमोट इट, बट ऑन द अदर हैंड the government itself or its agencies are trying to somehow make people go off plastic. Don't use plastic, is against the environment and all that. So how do you deal with that contradiction? And related my Very- question, High Court and Supreme Court lots of judgment said in that related to plastic means गणपति या तो नवरात्र या तो फेस्टिवल जो होता है उसके वक्त भी ये बहुत सारे आते हैं जो मुद्दे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन खासतौर कुछ चीज़ें प्लास्टिक के बारे में होते हैं जो रोज़ की खरीद के प्लास्टिक की पिशवी हो जाता है, उससे रिलेटेड ऐसे कुछ मामले जिसमें हाईकोर्ट के जजमेंट भी है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का आपको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं लेकिन ये तो बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह। नहीं नहीं, उनका आंसर है अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन किया है, दैट इज़ नंबर 1। हम लोग क्या बोलते हैं, और single use plastics all are now in bio, should be in bioplastics, that biopolymers, and that growth is there. Even I have my own company on the side, biopolymers, and that is the answer to your question. That means, but whole system has to be there. You see, you can't, this is commerce, इसको profit मिलता है, इसको loss होता है, तो उसमें करो, but this is a answer to that what you call बैन प्लास्टिक है, जो भी बहुत है वो गलत है। मैं एक सर दूसरा आपका पॉइंट से हम लोग जब हम लोग इतना घूमते हैं जो भी है, चाइना जाते हैं, यूएस जाते हैं या कहीं भी, ये चाइना वाले को कुछ एनवायरनमेंट का कोई हिलता ही नहीं है, मीन्स कुछ उसका नहीं चलता है, तो इतना एक्सपोर्ट करते हैं। सो देयर इज ए नहीं सर एक गलत करता है तो हम नहीं justify नहीं मैं नहीं, वो justify नहीं करते। वो नहीं जस्टिफाई नहीं करता हूँ मैं, जो डाटा है मेरा एक्सपोर्ट इतना है 1.6, आपने बताया कि वियतनाम में चाइना तो उनको जो है एक्सपोर्ट तो प्लास्टिक प्रोडक्ट ही करता है, तो कैसे करते हैं, हाउ दे इट इज एक्सेप्टेड। व्हाट आई एम टू से कि जो भी कंट्री में Do you want the government to ban Chinese products as far as plastic is concerned, so that Indian market is not filled with Chinese products and India should buy our products? Done it. नो डेट हम लोग हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें जो बैन चाइना तो आउट हो जाएंगे। हाँ अगर हमारी नहीं। स्ट्रेंथ बढ़ती है तो चाइना आउट हो जाएगा अपने आप। नहीं हम लोग का कोशिश पहले तो जो एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट में तो सर दूसरा फ़ायदा क्या है कि कभी कभी बोलते हैं एमएसएमई का स्टैंडर्ड कम रहता है, मीन्स मटेरियल का क्वालिटी QCO। तो ये जो एमएसएमई जो है ऑटोमेटिक एक बार आप एक्सपोर्ट माल करो तो दे वांट स्टैंडर्ड समथिंग मीन्स जो है,
तो ऑटोमेटिक उनको पीछे आना पड़ेगा, भाई हमको सही माल बनाने का है। तो यही हमारा पॉलिसी, वन ऑफ द एंगल ये है कि एमएसएमई एक्सपोर्ट करेगी, देन द थिंग्स विल फॉलो इन दैट प्लेस, कि भाई बराबर आएगा वो। एक सवाल पूछूं रिलेटेड? हाँ सर। जैसे कि आपने बहुत अच्छा डाटा दिया है कंपेयर टू अलग अलग यूरोप और अमेरिका डाटा के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह, लेकिन कंपेयर टू वो देश और भारत, इस खासतौर आपने जो सब्जेक्ट को हाथ लगाया, इसमें R&D भी कितना होता है? क्योंकि हम अगर इंटरनेट पे डाटा देखें तो इंडिया इस क्षेत्र में R&D में कितना है, आप ही बता सकते हैं? देखिए R&D में जो बड़े हैं, जो बड़े जिसका स्केल बराबर है, उसमें तो कोई पॉलीमर नो R&D इज रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर ऑल टॉप मोस्ट में, जो भी वर्ल्ड ग्लोबल स्केल के हैं पॉलीमर सप्लायर हमारे को। मशीनरी वाले भी, कोलोब्रेशन वाले जनरली जो है उनमें भी वो ज़रूरत नहीं। प्रोडक्ट वाले जो हैं दे आर इन MSME एंड दे आर डूइंग इट। अभी जो है अपना BI स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड सब उसमें करते हैं। सो देर इज़ ग्रेजुअली देर इज़ अवेयरनेस। और वही मैं बोला, अभी जो थर्ड जनरेशन जो आई है ना, दे आर एजुकेटेड एंड दे आर फॉलोइंग इन दिस प्लेस। तो देर इज़ नो इश्यू एज सच एज ए द R&D। ओनली R&D का अभी जो है प्रोसेस जो चलता है उनका कंप्लायंस करते हैं। व्हाट आई मीन से, इफ़ यू मेक ए प्रोडक्ट, उनका R&D करके चलाते हैं, मीन्स दे गो फॉर इट। तो अभी ग्रेजुअली एक्सपोर्ट करेंगे ना सर, तो पूरा लाइन पे आ जाएगा। दिस इज आवर कन्विंग पॉइंट। और Excuse me, one question here. We have got so much R&D. Why are we not focusing on biodegradable plastic? no, Somebody should set its sights on this focus to become a leader, and India has the capability to become a leader. Okay. So what is your focus, and how much R&D will be required to put in making a biodegradable Biodegradable. सर Give me your figures on that. या फिगर्स अभी सर, एक अपना बायोडिग्रेडेबल का जो पॉलीमर है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज नंबर 1। अभी अपना कैसे अपने Balrampur, they are coming with. बलरामपुर चीनी, they have set up a plant, that means they will be coming into production with PLA and all that, and other also जो 2-3 अपना प्राज इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उन्होंने प्लांट लगाया है PLA का। तो दैट विल कम इनटू द मार्केट एंड वी विल बी एबल टू ग्रो, एंड दैट मार्केट विल ग्रो एंड वी आर सपोर्टिंग इट। तो ये बायोडिग्रेडेबल का पॉलीमर जो है बेसिक, इट विल बी अवेलेबल। अभी कल परसों उधर भी हुआ था, आपने देखा होगा टीवी में, मोदी साहब ने गए थे, वो आसाम में भी किया था एक जो इथानॉल वगैरह का जो प्लांट था वो। तो दैट विल कम सर, बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम। Yeah, but sir, I'll give you this is a question here.
और जो बीई वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग अलग टाइटल देते हैं एंड देयर पैकेजेस आर डिफरेंट। इनको समझो 3 लाख मिलता है तो उनको 4 लाख मिलता है, 5 लाख मिलता है, ऐसा करके जाता है वो। In बट addition- इट इज़ ए 75 आवर्स कोर्स, टेक्निकल कोर्स एंड वेरी अपस्किल्ड कोर्स एंड वेरी यूजफुल टू द इंडस्ट्री। तो डिज़ाइनर वगैरह जो है उसमें सब जगह चलता है। मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो लेते हैं Yes. तो ये खास या इंडस्ट्री एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट ऑल्सो। You visit, there You are can Nari, visit there. on their east it is, but like daughter like you, they are coming, they are having, I mean, Nari Shakti. You will love to see that. And after that, मेरा सवाल ये आगे हाँ अभी सर अच्छा मेरा सवाल ये है, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र राज्य सरकार केंद्र सरकार ने आपको सहायता की, इंसेंटिव देना चाहिए, आपका कहना है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एक दूसरी बाजू आप देखेंगे तो प्लास्टिक बैन के ऊपर चल रहा है, हर जगह तो हो रहा है। लेकिन ये जो है फिर आप राज्य सरकार केंद्र सरकार से क्यों मांग रहे हैं, मदद क्यों मांग रहे हैं? आप तो कैपेबल है, आपकी इंडस्ट्री बोले तो ऐसी क्या अड़चन आई? कैपेबल कोई नहीं होता है, ठीक है। कैपेबल बोलेगा तो जो हम लोग हैं। प्रॉपर आपको नहीं बोलते जो ये क्षेत्र में उतरे हैं। नहीं नहीं सर, देखो हम लोग भी जो करते हैं काम, वो बैंक फाइनेंस ही ऐसा हमारा होता ही है। एवरीबडी जो भी मैन्युफैक्चरिंग में कोई विदाउट बैंक फाइनेंस नहीं चल सकता है। हम तो अभी वो भी प्रमोट करें भाई IPO भी लाओ MSME में, अच्छा रहेगा, दैट बी द थिंग। जो मानते हैं राज्य सरकार वो भी समझती हैं कि ऐसे वो मन में नहीं बोलते हैं कि भाई आप खराब हो, तो बट दे आर ऑल्सो फीलिंग कि भाई ये नाम खराब है इनका, जो वो बोलते हैं। मगर हम लोग का जो है ग्रोथ है, सबको मालूम है, सब टॉप ऑल पॉलिटिशियन दे नो, जो हम तो मिलते हैं जो दे आर विथ अस ऑन द प्राइवेटली। अच्छा इसके और एक सवाल इसके साथ में ऐसा जुड़ा है। सवाल ये है कि सरकार के तरफ एक पॉलिसी नहीं है जो डिस्ट्रॉय किया जाता है प्लास्टिक, वो सरकार ने कभी तय कि तो आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी इंडस्ट्री को? समझा नहीं? मेरा मतलब ये है जो अभी प्लास्टिक है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए सरकार ये पौर उठा रही है, वो उठा रही है, लेकिन इसके चलते आपकी इंडस्ट्री जो है प्लास्टिक इंडस्ट्री थोड़ा सा फटका बैठ रहा है मार्जिन में। यानी कि सरकार ने कभी पॉलिसी तैयार की चीज बैन के लिए, उन्होंने क्या आपने बोला दूसरे देशों में ये चल रहा है, प्लास्टिक चलता है, तो अपने देश में प्लास्टिक हटाओ का नारा है। तो इसके चलते सरकार ने ऐसी कोई तैयार की पॉलिसी तैयार की प्लास्टिक कैसा डिस्ट्रॉय करना चाहिए, सरकार ने ऐसी यंत्रणा खड़ी की तो आपकी इंडस्ट्री को उसका फायदा हो सकता है। और रिसाइकलिंग करते हैं ना, देर आर our one show is dedicated to recycling. Our show, बराबर है, थोड़ा ये भी जोड़ दीजिए कि कितने रिसाइकल प्लांट महाराष्ट्र में देश में है, मतलब बहुत अच्छी जानकारी होती है। so one dedicated show is there from our IPMA side. Third show is going to happen on 2026, particularly dedicated to recycling. मतलब जो रेग पिकर से लेके उसको आर्टिफिशियल सेग्रीगेट करके फिर उसमें से रिप्रोसेस करके रिसाइकलेट बनाते हैं, जिसमें से बेंचेस बनती है, कई चीज़ बनती है। That is 3 shows are there, so one can come into the show and come to know how it is being done, and government is supporting that because तभी तो कचरा हटेगा और ये रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनेगा। हाँ सर, आपका कुछ था? नहीं वही सर मैंने बताया कि ये जो है हम लोग का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो टीचिंग करते हैं या जो भी 75 आवर्स का कोर्स है वो अपना टेक्निकल कोर्स रहता है, और उसमें हम लोग डिज़ाइन का से डिज़ाइन मैटर्स, तो सबको डिज़ाइनर की ज़रूरत रहती है, तो उधर हम लोग के सिस्टम से पास होकर उधर जाते हैं। तो हमारे टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है, महिंद्रा, वहाँ बच्चे लगे हैं, दे आर देयर, सो वी आर देयर टू सपोर्ट। तो उसमें जो भी बच्चा है, अभी इवन अपने हाउसमेट रहती है, उनका भी बच्चा बोलते हैं हमारे वो चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम लोग फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं CSR फंड से, एंड ही गेट्स द जॉब इन द स्टार्टिंग हम लोग ही बोल देते हैं जो एम्प्लॉयर है ना उनको कि भाई 3 लाख से नीचे नहीं देने का है। बम्बई में कौन 3 लाख के नीचे का है, कहाँ बम्बई में जी नहीं सकता आदमी। तो इसलिए और दूसरा उनको क्या है कि सर ये पटेलो क्या करते हैं, फिर बोलते सब IT में जाते हैं, IT में जाते हैं, और IT में तो IT का भी हमने देखा स्टार्टिंग 3 लाख ही है,
वो बाद में करे। In addition, student trained MIDC Andheri Tech Center previous 5 year in this sector. हाँ। आपने कहा जो तो- MIDC अंधेरी में जो टेक्नोलॉजी सेंटर है ना, वहाँ कोर्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किलिंग किया जाता है, तो पूरे 4-5 साल का कोई ऐसे डाटा भी है, दे सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट और एम्प्लॉय है ना, why not? तो अभी जो डाटा अभी आपको खाली फिल्म बता देंगे 2 मिनट का 3 मिनट का है, तो आपको वो फिल्म बता देते हैं। तो पहले वो बताऊँ एमटेक के फिल्म। और इन एडिशन आपका एक क्वेश्चन में देर आर स्टूडेंट्स दोज हु हैव कंप्लीटेड कोर्स मैक्सिमम हैव got job, but there are 2 to 3 girls and boys side there that they told we wanted to have our own startup. They wanted to have their own industry, entrepreneurs. So that is encouraging. So like daughter like her should go and see. एक बार बता दीजिए, 3 मिनट का है, प्लीज हम बता देते हैं आपको।